ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات، وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر UAE شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی رحیم یار خان میں ملاقات کے بارے میں۔ شیخ زائد پیلس میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے میں کہا گیا 26 دسمبر کی اسلام آباد ملاقات کی بات چیت کو آگے بڑھایا گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان UAE تعلقات کو اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کا عزم دہرایا۔ باہمی تجارت میں غیر معمولی اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات کے دوران IT، توانائی، معدنیات، کان کنی اور دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے صدر شیخ محمد بن زائد کی قیادت میں UAE کی شاندار ترقی کو سراہا۔ UAE میں مقیم 21 لاکھ پاکستانیوں کا کردار پاک UAE تعلقات کی مضبوط بنیاد قرار دیا۔ وزیر اعظم نے پاکستانی کمیونٹی کی میزبانی پر UAE حکومت کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ بندرگاہ پر اتاری گئی کھیپ میں کوئی اسلحہ شامل نہیں تھا۔ UAE نے اتحادی افواج کے الزامات مسترد کر دیے۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا مکلا بندرگاہ پر گاڑیوں کو نشانہ بنانا غیر متوقع تھا۔ یمن میں اماراتی موجودگی حکومت یمن کی درخواست پر اور سعودی قیادت میں عرب اتحاد کے فریم ورک کے تحت ہے، جس کا مقصد آئینی حکومت کی بحالی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ UAE یمن کی خود مختاری کا مکمل احترام کرتا ہے۔ وزارت خارجہ نے خبردار کیا کہ موجودہ صورتحال سنگین سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ UAE نے یمن سے انسداد دہشت گردی ٹیمیں بھی واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق فیصلہ اماراتی اہلکاروں کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ وزارت دفاع نے علاقائی امن و استحکام کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ نے دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے پاک سعودیہ دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ بھی کیا۔ اور کراچی میں وکیلوں کا تھانے میں گھس کر SHO پر حملہ۔ رجب بٹ کو مارنے والے وکلا نے SHO سٹی کورٹ کی بھی پٹائی کر دی ہے۔ جتھا وکلا اتحاد زندہ باد کے نعرے لگاتے تھانے میں داخل ہوا اور SHO کو دفتر کے اندر تشدد کا نشانہ بنایا۔ تھانے میں موجود دیگر افسر بے بسی کی تصویر بنے رہے۔ پولیس افسر کو مارنے کے بعد وکیلوں نے MA جناح روڈ پر دھرنا دے دیا۔ پہلے یوٹیوبر رجب بٹ، پھر SHO وکیلوں کے تشدد کا شکار۔ کراچی میں یوٹیوبر رجب بٹ پر تشدد کا مقدمہ درج ہونے کے بعد وکیل آپے سے باہر ہو گئے۔ یوٹیوبر پر تشدد کرنے والے وکیلوں نے تھانے میں گھس کر SHO سٹی کورٹ کی پٹائی۔ وکیلوں کا جتھا نعرے لگاتا تھانے میں گھسا۔ SHO کا پوچھا سپاہی کی نشاندہی پر کمرے میں گھس کر گالیاں دیتے ہوئے تھانے دار پر حملہ کر دیا۔ وکیلوں کے جتھے نے گزشتہ روز یوٹیوبر رجب بٹ کو عدالتی احاطے میں تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ پولیس نے وکیلوں کے خلاف رجب بٹ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا تو وکیل مشتعل ہو۔ SHO پر تشدد کے بعد وکیلوں نے MA جناح روڈ پر دھرنا دے دیا۔ وکیل رہنماؤں نے دھمکی دی جب تک رجب بٹ اور اس کے ساتھیوں پر مقدمہ درج نہیں ہوتا سڑک نہیں کھلے گی۔ دھرنے سے سٹی کورٹ سے بولٹن مارکیٹ جانے والی سڑک بند ہو گئی۔ کراچی سے خبر ہے جہاں پر ایک اور بچے کی گٹر میں گر کر موت پر سیاست۔ ٹاؤن چیئرمین نے ڈھکن نہ ہونے کا ملبہ ڈال دیا۔ ڈپٹی میئر نے بتایا بلدیاتی نمائندوں کو گٹر کے ڈھکن فراہم کر دیے گئے تھے۔ PTI کے UC کاؤنسلر نے غفلت دکھاتے ہوئے ڈھکن نہیں لگائے۔ حادثے کے بعد فکسڈ کے رضاکار ڈھکن لگانے پہنچ گئے۔ کراچی میں ایک کے بعد دوسرا حادثہ، کبھی ابراہیم تو کبھی دلبر کی ماں معصوم بچوں کی موت کا غم مناتی ہے، لیکن انتظامیہ اور حکومت عملی اقدامات کے بجائے صرف بیان بازی اور الزام تراشی میں مصروف ہے۔ عوام کا بس ایک ہی سوال ہے کہ کھلے گٹروں پر ڈھکن کون لگائے گا۔ ڈپٹی میئر سلمان مراد نے ARY سے گفتگو میں کہا مین ہول پر ڈھکن لگانا UC چیئرمین کی ذمہ داری ہے۔ یہاں کے ٹاؤن چیئرمین ہے PTI کے گور کٹک صاحب، UC کا چیئرمین بھی PTI کا ہے۔ واٹر بورڈ کی انتظامیہ سے میں نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا 8 دن پہلے UC چیئرمین کی ریکوائرمنٹ پر ہم نے 10 مین ہول کور ان کو دیے۔ ان بھائی نے بتایا ہے
कि उनको मैनुअल कवर रिंग प्रोवाइड किए गए हैं, मगर उन्होंने लगाए। पीटीआई के टाउन चेयरमैन गोहर खटक ने जिम्मेदारी वाटर बोर्ड पर डाल दी। कहा ढक्कन लगाना वाटर बोर्ड का काम है, लेकिन उनका एमडी हमसे मिलता है, न जवाब देता है और न काम करता है। मेहरान टाउन में रात को ढक्कन लगाने पर फिक्सिट और पीपी कारकुनों में झगड़ा भी हुआ, लेकिन ढक्कन फिर भी न लगा। जहाँ बहक बच्चे दिलबर के वालिद कहते हैं बच्चा तो चला गया, खुदारा अब ढक्कन लगा दो। मैं काम लोडिंग का करता हूँ, एक ही मेरा बच्चा था, बाकी अपील इकलौता बेटा था आपका? एक लोटा बेटा था। अपील ये है कि भाई लिहाजा ढक्कन लगाए जाए, पहले नहीं थे अभी लगाए जाए। ढक्कन लगाते तो शायद ये हादसा नहीं होता। बड़े टाइम से खुले में हमारे बहन भाई छोटे भाई घूमते हैं इधर, गटर के ढक्कने खुले में सारे, कोई आता ही नहीं है पूछने इधर। मेहरान टाउन में अब भी दर्जन से जायद खुले मेन होल्स शहरियों की जानों के लिए खतरा बने हुए हैं। लोग सवाल कर रहे हैं ढक्कन लगेंगे या खुले मौत के ये कुएं यूं ही मासूम बच्चों को निगलते रहेंगे। मेहरान टाउन वाले गटर पर ढक्कन था, किसी जालिम ने हटाकर साइड पर रख दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लोग म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर को बाप का माल समझते हैं, कोई तोड़ देता है, कोई चोरी करके ले जाता है। यूसी चेयरमैन फंड्स के बावजूद काम नहीं कर रहे तो घर जाएं, काम हम खुद कर लेंगे। ये नहीं था कि गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था, ढक्कन उठा के किसी जालिम ने साइड में रख दिया। म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लोग बाप का माल समझते हैं, कोई तोड़ देता है, कोई चोरी कर लेता है, कोई इसको लेके चले आते हैं। क्या मैं ढक्कन निकाल के ले गया? इख्तियारात का वसाइल का इशू नहीं है। जिस यूसी में ये वाकया हुआ है उस यूसी चेयरमैन को क्या OGT शेयर मिला है? हाँ मिला है। इजाफी 1 लाख रुपए का जो मैंने ऐलान किया, क्या उसको इजाफी 1 लाख रुपए मिला? हाँ। अगर यूसी को पैसे मिल रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए उस यूसी के अकाउंट में है तो वो यूसी वालों को जवाब देना चाहिए। अगर किसी काम के नहीं है तो घर चले हैं, काम हम कर ले। हुकूमत और अपोजिशन का मुज़ाकरात के लिए इनडायरेक्ट राबिता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई को मुश्तरका दोस्त के जरिए वफाकी वजीर का पैगाम पहुंचाया गया। ज़राए का कहना है महमूद अचकज़ई को पैगाम दिया गया है कि हुकूमत मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों से मुशावरत कर रही है। PTI रहनुमा का कहना है हुकूमती मुशावरत से लगता है वो मुज़ाकरात में संजीदा है। हुकूमती ज़राए का कहना है स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन के लिए महमूद अचकज़ई से राबिता है। महमूद अचकज़ई की जानिब से स्पीकर को मतलूबा दस्तावेजात आज फराहम की जाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा PTI ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। साहिब इख्तियार अफराद से दरखास्त है बहुत हो गया, कोई तरीका निकालें। सुहेल आफरीदी अपने तौर पर लाहौर आए, पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। हमारे लिए नाहलियों का साल गुजरा, दुश्मन के साथ सीज फायर हुआ, हमारा आपस का तनाव खत्म नहीं हो सकता। साहिब इख्तियार लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत हो गया, खुदा के लिए कोई तरस करो, अपना ईगो को डाउन करना पड़ेगा। अभी एक दूसरे के लिए दिल का दरवाजा खोलना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपने कभी भी मुज़ाकरात का हलफ नहीं किया। मेरे पास खान साहब की कोई ऐसी हिदायत नहीं आई है कि आज के बाद बातचीत नहीं होगी। स्ट्रीट मूवमेंट होगी और फुल फोर्स के साथ होगी। वो मैंडेट खान साहब ने उनको हिदायत भेजी है सुहेल अफरीदी साहब को, जो उन्होंने दौरा किया है लाहौर का, ये भी उनका पर्सनल था। इसमें पार्टी की मुशावरत नहीं थी। मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत हो, पार्टी के अंदर भी जमहूरियत हो और लीडरशिप भी ऐसा ना हो टिल फर्दर ऑर्डर लीडर होता है। हमारा पाकिस्तान में तो यही चलता है, टिल फर्दर ऑर्डर यू आर लीडर, यू आर नॉट अ लीडर। तो हमारा सारा सिस्टम इसलिए थोड़ा सा कमजोर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बदतमीजी की। वज़ीर इत्तलात पंजाब का पंजाब असेंबली से वॉकआउट। अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अमले ने सहाफ़ियों को धक्के दिए। अपोजिशन लीडर ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया, हत्ता कि इज्जत का दावा कर रही हूँ। CM-KP हैं, उनके साथ गैर मुतल्लिका लोग घुसे, जो सहाफी जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता थे उनको CM-KP के स्टाफ ने, के गार्ड्स ने मारा पीटा। यूं को तो अल्लाह ने बचाया जनाब। ये अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफी और माजरत करने की बजाय तूफान बदतमीजी बरपा रहा। अपोजिशन लीडर साहब ने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम वो सहाफी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर डेफमेशन नोटिस में तैयार करा रहे पंजाब के सहाफियों के साथ जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया। जनाब स्पीकर मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। लाहौर की मरकजी शाहराहों पर पंजाबी जबान में दिलचस्प बोर्ड लग गए। इस पर शहरी क्या कहते हैं, ये जानिए सिद्रा गयास की इस रिपोर्ट से। पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाबी जुबान के फरोग के लिए लाहौर की मरकजी शाहराहों पर तशहीरी बोर्ड नस्ब किए हैं, जिन पर पंजाबी के फिक्रे लिखे गए हैं। नई नस्ल इससे कितनी वाकिफ है, उनसे जानते हैं।
पंजाबी हमारी माँ बोली है। पंजाब हुकूमत ने क्या कहते हैं साइन बोर्ड्स बड़े लगाए हैं, ये बहुत ज़रूरी था। हमारी आजकल की जनरेशन को पंजाबी लैंग्वेज का इतना पता नहीं था, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उनमें भी क्या कहते हैं इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, पंजाबी लैंग्वेज को इतना नहीं किया जाता। हमारी जो ज़ुबान है वो पंजाबी है, हरियाली विच ज़िंदगी है, तो ये बहुत सारे लोग हैं जिनको पंजाबी पढ़नी भी नहीं आती, तो ये बहुत ही अच्छा जो है ना मरियम नवाज का जो कदम है। ये फर्स्ट टाइम ही देखा है कि पंजाबी साइन बोर्ड्स हैं, पोस्टर्स हैं, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह पढ़ना आएगा, समझ आएगा क्या लिखा है, क्या मतलब है उसका। ये लाहौर में बहुत अच्छे फ्लैक्स लगे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ इसी तरह के फैसलाबाद में लगे, ताकि लोगों को और पंजाबी ज़ुबान है वो पढ़ सकें। पंजाबी जुबान के तशहीरी बोर्ड पर नई नस्ल का कहना है कि हुकूमत पंजाब का ये एक अच्छा इकदाम है। इससे न सिर्फ पंजाबी जुबान को फरोग मिलेगा, बल्कि नई नस्ल में पंजाबी जुबान को समझने में भी आसानी होगी। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ सिद्रा गयास, CRY न्यूज़, लाहौर। कराची के सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2 अरब 90 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं तमाम सनती इलाकों की सड़कों और निकासी आब के निजाम की मरम्मत की जाएगी। हुकूमत सनती इलाकों की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। कराची की शाहराह फैसल पर कल से डबल डेकर बसें चलेंगी। वजीर आजम कराची के लिए 150 बसों का वादा पूरा करें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कोशिश है रेड लाइन मंसूबा मार्च अप्रैल तक मुकम्मल कर लें। कल हम शुरू करने जा रहे हैं कराची की शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। मलिर से शाहराह फैसल तक मजीद भी डबल डेकर बसें लेके आ रहे हैं यहाँ पे भी, और जो बाकी सिंध के शहरी इलाके हैं। ऑरेंज लाइन की इस इंटीग्रेशन के बाद 4 किलोमीटर से बढ़ाकर उसको 10 किलोमीटर कर दिया है। पाकिस्तान की ये वाहिद BRT है जिसमें एक ही कार्ड पे आप ऑरेंज लाइन BRT और ग्रीन लाइन BRT पे सफर कर सकेंगे। रेड लाइन BRT में बहुत सारी तकालीफ थी। इस वक्त कोशिश ये है कि हम मार्च अप्रैल तक जो आपके मेन कॉरिडोर्स हैं उनको हम कंप्लीट कर लें। 150 बसेस का प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिट किया, वो बसें अभी तक नहीं आई हैं, तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब से फिर गुजारिश करेंगे जो आप वादा करके गए थे वो पूरा करें। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Dolan's Premaline Air Conditioner, Pakistan's first air purification smart air conditioner with PureSense technology that detects and removes smog, bacteria and the smallest airborne particles with the help of ionization, which balances the negative and positive ions in the air around you so that you can breathe freely. With HomeWiz and PowerShift feature, every innovation, every feature, every detail, engineered for a better tomorrow. Dolan's Premaline, designed for better. एक्टिव लाइफ के साथ दिन रात KNN's डिलाइन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दरामदात बरामदात नॉन ट्रांजिट रेट को मजीद आसान करने के लिए इनकलाबी इस्लाहात मुतारिफ करा दिए हैं। अब ताजिर हजरात समंदर में सफर के दौरान ही तमाम ज़ाब्ता-जाती तकाज़े बशमूल कस्टम्स क्लियरेंस मुकम्मल कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी पेशगी अदायगी के। FBR का ये इंतहाई नागुज़ीर कदम हमारी बंदरगाहों की कारकर्दगी को बेहतर बनाएगा और पाकिस्तान के आलमी वैल्यू चेन के मौसर इंतजाम को फरोग देगा। नतीजा, पाकिस्तान की बंदरगाहों से डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, ड्विल टाइम, डैमरेजेस और इजाफी बंदरगाही खर्चात में नुमाया कमी। ताजिरों और सनतकारों से गुजारिश है कि अपनी अशिया की पाकिस्तान आमद से कबल ही गुड्स डिक्लेरेशन फाइल करें और बगैर ताखीर या इजाफी लागत के अपनी कंसाइनमेंट पोर्ट से क्लियर करवाएं। पाकिस्तान कस्टम्स बना रहा है तिजारत को तेज तर, पाकिस्तान को मजबूत तर। हुकूमत पाकिस्तान। Drive past fuel prices. Up to 75% savings. Switch to world's कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। स्वात और चित्राल में भी बर्फ गिरने लगी, बादल बरसने लगे। कराची में भी आज बारिश का इम्कान है, सर्दी भी बढ़ जाएगी। मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। चमन, किला अब्दुल्ला और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से जल्द हलेक।
तो बाद चकजई को जगटा पर ख्वाजा इमरान समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई। कोयटा में भी बादल बरसे। गवादर और गिरदनवा में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। अपर और लोअर चित्राल के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी गुज़िश्ता रात से जारी। ठंड मजीद बढ़ गई। महकमा मौसमियात का कहना है खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज से 2 जनवरी तक बारिश मुतवक्के है। पहाड़ों पर बर्फ भी गिरेगी। वादी स्वात के दिल कालाम में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग आसमान से बरसती बर्फ से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दिलकश मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाह बड़ी तादाद में स्वात का रुख कर रहे हैं। बर्फबारी के लिए कालाम आए हैं, बड़ी वीआईपी बर्फबारी हो रही है। हम सबको हमारे दावत है कि आए बर्फबारी देखें। कालाम में बर्फबारी का आगाज हो गया है। आप लोग आए, मौसम से लुत्फानंदोज हो और कालाम के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज हो। ये बाजार और ये माहौल ये बहुत कम टाइम पे ये हमें इस तरह देखने को मिल रहा है कि हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। सखर प्रेस क्लब और सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंतखाबात में जर्नलिस्ट पैनल के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार दे दिए गए। लाला असद पठान के जर्नलिस्ट पैनल के नामजद उम्मीदवारों के बिला मुकाबला इंतखाब का ऐलान कर दिया गया। सखर प्रेस क्लब के सदर खालिद भांबन और जनरल सेक्रेटरी सैयद अहकर रिजवी मुंतखब हुए। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जावेद जतोई, जनरल सेक्रेटरी कामरान शेख और जहाजे बसीर ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। सहरिज खोखर सिंध विमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की सदर और गुलेरुख विरानी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गई। 50वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पैगिंग चैंपियनशिप 2025 जिन्ना पोलो फील्ड्स लाहौर में खत्म हो गई। इख्तितामी तकरीब में आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक तकरीब में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत तमाशाइयों की बड़ी तादाद मौजूद थी। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।